Welcome to the English Lovers by Honeydee. So this particular video is specifically meant for the standard 8th in ICSE. Whomever is following the comprehensive English grammar book, if they have that in their syllabus, then what we're gonna do in this one is we are going to have the questionnaire, all the questions of active and passive voice chapter. And we're gonna sort them out and we're gonna find the answers for the same. Explanation of that particular concept is already done by me in the previous year. So if you want to watch that one, I'll be just linking that particular video to this video itself, so that you can know about the concept of the active and the passive voice too. So before we start, kindly please subscribe my channel and hit the like button after you watch the video, and share this video with others so that they can learn the concept of active and passive voice in a better way. तो चलो शुरू करते हैं. Let's start. It's loading a little bit time. Yeah, here you can see we have the questions of the first exercise of active and the passive. Students of 8th standard can be a little bit more attentive, others can understand it for the understanding sake. So the first question that we have here is first of all, let's read the statement that change the voice of the verbs in the following sentences from active to the passive. You should know that when we change from active to the passive voice, we have to follow some golden rules, as I've mentioned previously. So those 5 golden rules we will be applying here, and applying those rules we will be getting the answers for each and every question. Her question ka answer we will be finding it out. Then let's start with the first question. I kept him waiting. So what we have to see in this one is we need to see that what is the subject and what is the object. इस sentence में subject हमारा I है and kept is the verb, and third one is him. Him is our object in this one, and waiting is the rest of the thing that we can write like that. Okay, I kept him waiting. So what will be the first word? पहले rule के according that object will be coming at the first place. Him will be turned into he. So he. Okay. Then kept is second form of verb which is possible in the past indefinite tense only. तो क्या करेंगे उसमें? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर दी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में रूल बताया था मैंने, दैट इज़ वॉज एंड वर इज़ देयर. सो ही वॉज. ओके, देयर आफ्टर वॉज द थर्ड रूल दैट वॉज ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज़ kept. here थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने हमेशा पैसिव वॉइस में, ये सबको पता है. ओके, बिकॉज एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज़ कंसर्न, तो वो हमने की है पहले. तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा. ओके, एंड इवन आई एम यूजिंग द हिंदी लैंग्वेज सो दैट फॉर योर योर अंडरस्टैंडिंग वुड बी बेटर. ओके, अदरवाइज एज फार एज द रूल इज़ कंसर्नड, स्टिक टू योर इंग्लिश. ओके, सो ही वॉज केप्ट waiting by. I will turn into subject will turn into object, and objects जब हम उसको object place में लिखते हैं तो I किस में बदलता है? me में. okay, I is turned into me. तो ये हमारा पहला आंसर. you can see that one, he was kept waiting by me. तो ये इसका पहला आंसर है. तो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन. द noise frightened the lamb. अगेन हमारे पास कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगेन 5 रूल्स वो फॉलो करने हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? द लैम्ब. ओके, द लैम्ब. तो लैम्ब सिंगुलर है, तो वॉज और वर में से क्या लगेगा? यस, वॉज लगेगा. द लैम्ब वॉज फ्राइटेंड. तो फ्राइटेंड ऐसे लगेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म भी इसी फॉर्म में आती है, लाइक इन्फ्लेक्शनल फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म भी फ्राइटेंड ही लिखी जाती है. फ्राइटेंड बाय द नॉइस. तो प्रेपोजिशन चौथा रूल हो गया, और द नॉइस इज़ द फिफ्थ रूल कि सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में बदलना है. द लैम्ब वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइस. ये हमारा दूसरा आंसर हो गया. अब तीसरे को देखते हैं. द काइंड हार्टेड वुमेन इज़ हेल्पिंग द ऑर्फन्स. तो इसमें हमारा थोड़ा टेंस चेंज हो गया. व्हाट इज़ द टेंस नाउ? वी गॉट द टेंस
प्रेजेंट कंटिन्यूस हेयर। ओके, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है एक्टिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में व्हाट इज़ द रूल, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब द थर्ड फॉर्म। दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। देन वो 5 गोल्डन रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो क्या है, हम लिखेंगे पहला अक्षर कौन सा होएगा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट इन एक्टिव फॉर्म, ऑर्फन्स। तो ऑर्फन्स हम पहले लिखेंगे द ऑर्फन्स, ओके, ऑर्फन्स। नाउ हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये प्लूरल है, तो इज एम आर में से क्या लगेगा, आर। द ऑर्फन्स आर, अभी उसके बाद मैंने बताया था कि बीइंग लगेगा, बीइंग। नाउ हेल्पिंग इज आर वर्ब, तो हेल्पिंग, तो हमारे पास थर्ड फॉर्म बनानी है हमने, व्हाट इट विल बी, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय, अभी बाय प्रपोजिशन जो हमने यूज़ की है, चौथा रूल है वो, पांचवा आ गया फिर, लाइक व्हाट इज़ द फिफ्थ रूल, द काइंड हार्टेड, द काइंड हार्टेड विमेन। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। तीसरा आंसर आ गया हमारा, द ऑर्फन्स आर बीइंग हेल्प्ड बाय द काइंड हार्टेड विमेन, ये हमारा आंसर आ गया। एल्बर्ट हैज़ चोजन अ बुक, तो कई बच्चों ने बोला था कि हमारी बुक में रवि लिखा है, तो उससे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा, सिर्फ नेम ही चेंज है। आप ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हो, तो दिस इज़ फ्रॉम द न्यू बुक। अगर ऐसा कुछ चक्कर भी है, तो आई विल बी सीइंग योर क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपका क्वेश्चन वहाँ पे सही लिखा हुआ है, देन यू आर राइटिंग आंसर अकॉर्डिंगली दैट, तो देन आई विल बी करेक्टिंग इट। बट अगर बुक में ऐसा दिया, बुक में ऐसा दिया वाला फॉलो ना करो, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। यू शुड नो हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, नॉट बाय जस्ट कॉपिंग इट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एल्बर्ट हैज़ चोजन अ बुक, तो इसमें टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले वर्ड जो आएगा वो है हमारा अ बुक, तो सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा। तो रूल क्या बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज़ एंड हैव के साथ बीन लगना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगनी है। अ बुक हैज़ बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें पहले ही थर्ड फॉर्म होती है, चोजन बाय एल्बर्ट। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आपका आंसर रह गया हो, देन यू कैन जस्ट अगेन रिपीट इट एंड वॉच दैट वीडियो, और वो मिनट्स को वॉच कर सकते हो जब मैंने आंसर लिखा, ठीक है। द ऑफिसर्स ऑफर्ड हिम अ जॉब, तो अगर ये क्वेश्चन है तो अगेन हमारे पास टेंस सेम आ गया है, रेपिटेटिव हैं थोड़े से, वेट। Then thereafter comes the question number 5, that is the officer offered him a job। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑफिसर जो है वो सब्जेक्ट है, एंड ऑफर्ड इज़ आर वर्ब, एंड हिम एंड अ जॉब बोथ आर आर ऑब्जेक्ट्स। हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जॉब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लाइक व्हेन वी गेट द, कैसे फाइंड कर सकते हैं, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ व्हाट, तो वो लाइक ही ऑफिसर ऑफर्ड हिम व्हाट, उसको जॉब ऑफर किया। देन ऑफिसर ऑफर्ड whom अ जॉब, अगर whom का आंसर हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर what का आंसर है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। सो आंसर इसका दो तरीके से लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन लाइक ही, और टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ही वाज ऑफर्ड अ जॉब बाय द ऑफिसर, बाय द ऑफिसर। तो ही वाज ऑफर्ड अ जॉब बाय द ऑफिसर, ये हमारा एक तरह का आंसर आ गया। दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अ जॉब वाज ऑफर्ड टू हिम बाय द ऑफिसर। ओके, दैट इज़ द सेकेंड वे टू राइट इट। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को करने का मेथड मैंने बताया था कि द लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब्स, थर्ड फॉर्म बड़ा इजी है। तो देन हाउ टू डू इट, लेट द डोर बी ओपन्ड, तो वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो एक ये मेथड हो गया। एक इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू आर ordered
टू ओपन द डोर, तो जो पहले वाला है दैट इज़ मच बेटर, उसको यूज़ करो, ठीक है। देन लाइक कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एडवाइस रिक्वेस्ट ऐसा कुछ हो तो दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद फिर से आई थिंक वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। तो इन इसमें क्या होएगा कि लाइक यू कैन राइट द आंसर लाइक वेरी ईजिली, ठीक है। इसमें क्या है, हमें दिमाग में रखना है हु को हमने कन्वर्ट करना है बाय हुम में, बाय हुम में कन्वर्ट कर देना है इसको। इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, तो कैसे आएगा, WH वर्ड में ही रहेगा। इसमें पर्टिकुलरली इस केस में जब हु है तब बाय हुम में कन्वर्ट करना है। बाय हुम, अभी टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ले लो या यू ले लो, कोई भी ले लो। बाय हुम अभी टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आर यू टॉट इंग्लिश, एक तो ये हो गया, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, इंट्रोगेटिव साइन, तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर जो पॉसिबल है, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, ये दूसरा आंसर हो गया। मतलब एक का ही दूसरा आंसर जो पॉसिबल आंसर है वो ये हो गया, ओके। उसके बाद है ही ऑब्जेक्टेड स्ट्रांगली टू माई प्रपोजल, सॉरी, ही ऑब्जेक्टेड स्ट्रांगली टू माई प्रपोजल, ये क्वेश्चन है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो टेंस हमारा यहाँ पे भी पास्ट में ही आ गया, पर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। माई प्रपोजल हम ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे, माई प्रपोजल, अभी टेंस है पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज लगेगा, वॉज, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, वॉज ऑब्जेक्टेड, सॉरी बी इट विल बी ऑब्जेक्टेड, was strongly objected to by, we can write was strongly objected to by him, तो ये आ सकता है, my proposal was strongly objected to by him, तो ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद है he did not kill the snake, तो इसका क्या बनेगा, snake, the snake was not किल्ड, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है पर है ये पास्ट इंडेफिनिट में ही, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस है, देन डेफिनेटली वील कन्वर्ट दैट अकॉर्डिंगली। तो रूल वो ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, पर वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। द स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय हिम, तो ये आंसर आ गया हमारा। और उसके बाद आ गया हमारा 10th क्वेश्चन, मे आई सी दिस मैप। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मॉडल वर्ब आ गई हमारी। तो मॉडल वर्ब, लाइक इन द केस ऑफ द मॉडल वर्ब हाउ वी चेंज, तो इंट्रोगेटिव रहेगा, बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि लाइक इट विल स्टार्ट विद मे, तो दिस मैप, तो मॉडल वर्ब के केस में हम क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब द थर्ड फॉर्म। तो इसमें भी क्या है, मे दिस मैप बी सीन बाय मी, इंट्रोगेटिव साइन। तो मे दिस मैप बी सीन बाय मी इज़ द आंसर, क्लियर। तो उसके बाद आ गया हमारा रिवॉर्ड योर सर्वेंट फॉर हिज करेज। ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, यू शुड रिवॉर्ड योर सर्वेंट फॉर हिज करेज, one way, but exact way it would be let your servant be rewarded for his courage। तो ये उसका आंसर हो गया,
दूसरा जो एप्ट है, जो अच्छा है, अच्छा वो भी है वैसे। सैडल द हॉर्स, अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यू आर ऑर्डर्ड टू सैडल द हॉर्स, यू कैन राइट यू आर ऑर्डर्ड टू सैडल द हॉर्स, एक ये हो गया। दूसरा तरीका है लेट द हॉर्स बी सैडल्ड, ये तीसरा तरीका हो गया, मतलब दूसरा अलग से तरीका हो गया, तीसरा तरीका हो गया। ओके एनीवेज, तो उसके बाद है दे इलेक्टेड हिम मिनिस्टर, तो इसका एक ही वर्जन आएगा, ही वॉज इलेक्टेड मिनिस्टर बाय देम। ठीक है, टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट ही है, तो इसी वजह से सेम कंस्ट्रक्शन, आई एम नॉट रिपीटिंग द कंस्ट्रक्शन, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बॉयज़ आर होल्डिंग अ डिबेट इन द स्कूल हॉल, तो इसमें भी टेंस आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो क्या होल्ड किया हुआ है, डिबेट किया हुआ है, तो डिबेट पहला अक्षर बन जाएगा अ डिबेट, पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, देन अकॉर्डिंगली दैट इज़ और बीइंग लगेगा इसमें क्योंकि कंटिन्यूस है। द डिबेट इज़ बीइंग हेल्ड बाय द बॉयज़, by boys only, by boys in the school hall. Okay, a debate is being held by the boys in the school hall, that is the answer. I'm actually making it in the audible form ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि अगर कुछ क्लियर ना हो इन राइटिंग तो आपको पता लग जाए कि what is the answer, exact answer. Then thereafter द टीचर फॉरवर्डेड द एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, ये कैसे बनेगा, ये भी पास्ट है, इसमें क्या आएगा, द एप्लीकेशन, टी कैपिटल, एप्लीकेशन वॉज फॉरवर्डेड बाय द टीचर टू द हेड मास्टर, or to the headmaster by the teacher you can write. Okay, anyway you can write. So Atlanta ran a race, इसमें कैसा आएगा, तो ये सेकंड फॉर्म है, a race was run by Atlanta, that is the right answer. a race was run by Atlanta, जो पास्ट इंडेफिनिट में है उसको ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। तो शी डज़ नॉट फियर एग्ज़ाइल, ओके, तो उसको देश निकाला, अगर दे भी दिया तो उसको कोई डर नहीं है। शी डज़ नॉट फियर एग्ज़ाइल, तो एग्ज़ाइल वाज, सॉरी वॉज नहीं आएगा, ये डज़ नॉट है, तो दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव ही रहेगा। एग्ज़ाइल इज़ नॉट फियर्ड बाय हर, ये आ गया इसका आंसर। हिज बिहेवियर वैक्सेस मी, ठीक है, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई, तो वैक्सेस थर्ड, सॉरी फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म एस और एस लगा हुआ है, देन आई एम वैक्स्ड बाय हिज बिहेवियर, तो बिहेवियर के स्पेलिंग उसमें भी दिए हुए हैं, यू कैन राइट अकॉर्डिंगली दैट ऑल्सो, सो दैट इज़ क्लियर। ही इज़ वॉचिंग अस, तो इसका क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, अस विल चेंज इनटू वी, वी आर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग लगेगा, वी आर बीइंग वॉच्ड, थर्ड फॉर्म, बाय हिम, तो ये आ गया इसका आंसर। देन उसके बाद है डिड ही कैच द नून ट्रेन, तो ये पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में रहेगी, पर हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी जो पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताई थी। तो क्या लगेगा, वॉज द नून ट्रेन, caught by him, तो इंट्रोगेटिव साइन, दैट्स इट। तो लास्ट क्वेश्चन है डू यू मिस्टेक मी फॉर अ डॉक्टर,
Okay, interrogative sentence in which form? Present indefinite. So do you mistake me? Me will convert into I. So what you are going to write? Am I mistaken for a doctor by you, or mistaken by you for a doctor, और फॉर अ डॉक्टर बाय यू एनी वे. ओके, इंट्रोगेटिव साइन. तो साइंस को ध्यान में रखना, बिकॉज हो सकता है मैंने एक आधा साइन गलत डाला हो, क्योंकि बिकॉज आई वेंट फर्दर फॉर द अदर आंसर्स. सो नाउ दीज ऑल आंसर्स आर कंप्लीट. आपके सारे आंसर कंप्लीट हो गए पहली एक्सरसाइज के. सो आई होप दैट कि 8th क्लास के बच्चे ये इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. सो सब्सक्राइब द चैनल. ओके, and you can also do one thing, that is you can also listen to the podcast on Anchor, on particular app Anchor. मैंने एक podcast already बनाई हुई थी पिछले साल से. तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप उसका नाम है. आई हैव कन्वर्टेड दैट. पहले उसका नाम था इंग्लिश लवर्स बाय हनीडी इटसेल्फ. नाउ इट्स नेम इज़ लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. तो कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के आंसर आपको वेरी इजीली यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर. ओके, सो ऑल द बेस्ट. So subscribe the channel, hit the bell icon to get the updates of the new videos, and share my videos with your friends and others. Bye bye, take care.